Good evening. You're watching To The Point. I'm Akshita Nandagopal. Away from all the Bihar political drama, the other big story this evening that we're tracking on India Today is the arrest of Shrikant Tyagi. The power of people prevailing, and details now emerging of how Shrikant Tyagi was so well connected politically. The UP police, after arresting Tyagi, have revealed that SP MLA Swami Prasad Maurya gave the VVIP sticker, the MLA sticker, to Tyagi for his vehicle. Besides that, on the vehicle that you see on your screens there was also a BJP flag, which means he enjoyed political patronage, protection from both political parties. Meanwhile, in an exclusive conversation with India Today, when we asked Swami Prasad Maurya, the SP MLA, about his links with Tyagi, he said that Shrikant Tyagi met him claiming to be a BJP leader. Let's play out for you exactly what Swami Prasad Maurya's defense is. चुनाव के दरमियान वो भाजपा का नेता होकर के मिला और बाद में 5-6 महीने तक वो कभी कभी आता था। 5-6 महीने के बाद वो कभी दिखाई भी नहीं पड़ा और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उस फोटो खिंचवाता था और साथ ही साथ ये हाव भाव करता था कि बहुत चलते पुरजे का आदमी है। लेकिन भाजपा की मेहरबानी इतनी रही कि किसान मोर्चे में पदाधिकारी भी बना, राष्ट्रीय कार्य समिति में ही रहा और साथ ही साथ कई सुरक्षा कर्मियों के घेरे में चलता था। तो सुखदेव सिंह ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपको? सुखदेव भारतीय जनता पार्टी हमारी खेल है, इस खेल में माहिर है, ये तो मैं पहले कह चुका हूं। तो भाजपा हमेशा अपने पाप का चादर दूसरों पर डालने में माहिर है। So that's Swami Prasad Maurya saying that he met Tyagi because he claimed to be a tall BJP leader. But why did he give him a VVIP sticker? Why did Tyagi have a BJP flag also on his vehicle? We're going to be answering all of those questions with our panelists as well. But before that, take a look at this report on all that played out in the last 24 hours, culminating in Shrikant Tyagi, the man you see on your screens there, being arrested. समझी? अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना कहीं पर कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से हाथ तो बिल्कुल मत लगाना। Hurled abuses at a woman and shoved her, terrorized fellow society members, encroached the society's common area, faced Yogi's bulldozer wrath, went underground fearing a crackdown by Yogi's police. Luck finally ran out for Shrikant Tyagi, who was arrested from Uttar Pradesh's Meerut by the Noida police on Tuesday. The UP police took a little over 72 hours to nab this goon neta, who was on the run since Friday, along with 3 of his accomplices. एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। Tyagi had been hoodwinking the police using this number plateless SUV with a BJP flag, with stickers saying MLA and UP Assembly. It also had a walkie-talkie. याकूबपुर से इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। यानी इस गाड़ी में दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी में वॉकी टॉकी है, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है और इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था फरारी के दौरान श्रीकांत त्यागी। Apart from constantly changing locations, Tyagi had switched off his mobile phone and avoided using online transactions and ATMs to dodge the police. The Noida police had slapped the Gangster Act on Shrikant Tyagi, forming multiple teams and even picking up Tyagi's wife for questioning. गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। The BJP and residents of the Noida society where Tyagi ran his writ rejoiced after the arrest. The arrest is definitely a win-win for us, but it is very important to know who were behind him. इसको मैनेजमेंट ने क्यों नहीं हैंडल किया पिछले 3 साल से, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022,
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने। Tyagi's sister has slammed him, saying his actions have shamed their family. उन्होंने लैंग्वेज यूज किया है या जो उन्होंने विमेन के साथ किया है, उस पे हम तो मतलब मैं उनकी सिस्टर होने के बावजूद पूरी फैमिली कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ना ही उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये जो उनका एक्ट था टुवर्ड्स अ वुमेन, वो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइबल है भी नहीं। Tyagi faces at least 9 cases, ranging from extortion to even attempted murder. With Arvind Ojha and Shreya Chatterjee in Noida, Bureau Report, India Today. What this has essentially done is it's created a narrative of people versus politicians, and the fact that more and more details are emerging of Shrikant Tyagi's political links. Let's open this up with Mr. Rakesh Tripathi, spokesperson of the BJP, who's joining us on this broadcast. We also have Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party. Mr. Vikram Singh, former DGP, is also with us on this broadcast. Good evening to all of you. Tripathi ji, आपसे शुरू करनी चाहती हूँ. ये श्रीकांत त्यागी कौन है? क्योंकि डे 1 से बीजेपी ने बोल दिया कि हमको कुछ लेना देना नहीं है श्रीकांत त्यागी से, लेकिन पहले उनके सोशल मीडिया बायो था, फिर पिक्चर्स थे जेपी नड्डा के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, और अभी उनके गाड़ी पे भी एक बीजेपी फ्लैग था। नहीं, देखिए, इस बात को अक्षता जी बार बार हम ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि आज राज्य में और केंद्र में दोनों जगह पर सत्ता में है, इसलिए कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके वो अपना रसूख बनाने की कोशिश करें। ये पिछली उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों में इस प्रकार की कार्य संस्कृति थी, जिसमें सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ आप मेलजोल बढ़ा करके उनके साथ फोटो खिंचा करके प्रशासनिक अधिकारियों पर रौब गांठ सकते थे और उसके आधार पर अपने कुछ गलत सही काम कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह कार्य संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज जिस तरह की प्राथमिक जांच से जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, पहले गाड़ी पे बीजेपी फ्लैग कैसे लगा? त्रिपाठी जी, पास है, वाहन पास है। नहीं, उस पे हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी फ्लैग भी है। दुकान से खरीद करके कोई भी लगा सकता है। तो आपके मतलब आप जैसे आप बोल रहे हो, अगर मेरे को फोटो लेना है योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, मैं फोटो ले सकती हूँ, मैं बीजेपी फ्लैग लगा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, मैंने एक स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सहज सरल आसानी से उपलब्ध हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो लोग खिंचवा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग दुकान पर मिलता है, दुकान पर कोई खरीद करके लगा सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी पर मिला विधायक का पास, जो विधायक के नाम पर जारी हुआ पास है और जो प्राथमिक तौर पर यह स्थापित होकर के आ रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जारी किया गया, हालिया दिनों में जारी किया गया पास है, जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव जीत करके आए हैं। ऐसे में ये बात स्थापित हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने नाम पर जारी किया गया वाहन पास जिसको दिया था, वो उनका करीबी व्यक्ति है। तो और जिस तरह के संस्कार दिखाई पड़े ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं भी ऐसे बीजेपी फ्लैग लगा सकती हूँ, मैं भी फोटो खींच सकती हूँ। लेकिन ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है वो भी हम ले लेंगे अनुराग भटौरिया के साथ। अनुराग भटौरिया जी, आप डे 1 से क्रिटिसाइज कर रहे थे बीजेपी को, बोल रहे थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। अभी तो लिंक आया है, यूपी पुलिस ने बोल दिया कि जो वीवीआईपी एमएलए स्टिकर थे गाड़ी पे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पार्टी के लीडर दिया था। मैंने आपसे एक ही बात पूछी है कि इनके सांसद ने कहा, मैंने नहीं कहा, कि मुझे शर्म आ रही है और सच्ची शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, पुलिस कहीं ना कहीं इन अपराधियों के साथ मिली रहती है। यही तो उनका कहने का मतलब हुआ, उनकी कोई सुनता नहीं है। और जब सांसदों की कोई नहीं सुन रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता गाली दे रहा है एक महिला को, लगातार गाली दे रहा है और 72 घंटे से ज्यादा छोटे भैया नेता फरार रहता है, बड़ी मुश्किल से जब सोशल मीडिया लग जाती है, मीडिया लग जाती है, सारे लोग समाजवादी लोग लग जाते हैं, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है।
छोट भैया नेता जो महिलाओं को गाली दे रहा है। अब तक तो इनके यहाँ भूमाफिया ही पैदा नहीं, आप सवाल को जवाब दीजिए ना। अनुराग भदौरिया जी, आप पहले बताइए ये स्टिकर कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको दिया है? एमएलए वीवीआईपी स्टिकर है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध है पुराने। अब पुराने संबंधों का निर्वाह करते भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। नहीं, एक सेकंड मेरा मतलब वही सवाल होगा अनुराग भदौरिया जी, वही सवाल होगा आपसे भी। अगर मेरे पास पिक्चर्स है सीनियर लीडरशिप के साथ बीजेपी के, क्या कोई और पार्टी के लीडर मेरे को एक एमएलए स्टिकर दे देंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर कोई आदमी, इतना आदमी पास केसेस हैं, आदमी गालियां दे रहा है, आदमी वहां पे रह रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, पुलिस को शिकायत इसके पहले भी हुई थी, तो 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्या कर रही थी? सवाल ये है, क्या पुलिस इंतजार कर रही थी या शासन इंतजार कर रहा था? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होगा, वो किसी को गाली देगा, जब सब लग जाएंगे तब कार्रवाई होगी। तो सोचो आम जनता की हालत क्या होती होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तभी तो यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी, आपके सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप जवाब नहीं दे रहे हो मेरे क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में कोई माफिया है, कोई गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता गुंडागर्दी कर रहा है। भाई वो गुंडागर्दी कर रहा है तो आपने क्यों छूट दी? क्यों नहीं आपने 3 साल पहले पकड़ लिया? एक बात। दूसरी बात, जब ये केस हो भी जाता है, लोग वहां पे सोसाइटी के लोग इसको केस FIR कर भी देते हैं, उसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, फिर भी लोग आते हैं 12-13 लोग उस महिला को धमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं वापस एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं मैं त्रिपाठी जी से भी पूछूंगी, लेकिन पहले एक और बार मैं आपको मेरे सवाल रिपीट करूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों एमएलए वीवीआईपी स्टिकर श्रीकांत त्यागी को क्यों दिया था? इसलिए क्योंकि उनके पिक्चर्स बीजेपी लीडर के साथ थे। चूंकि श्रीकांत बीजेपी का लीडर है और वो भी बीजेपी में थे, तो एमएलए स्टिकर मिला उनको। एमएलए स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी एमएलए स्टिकर दे दिया किसी और पार्टी के लीडर को। सुन तो लीजिए, सरकार ने गनर दिया हुआ है, लगातार 2020 तक उस पर गनर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने किस आधार पे गनर दिया? क्या उसकी इंक्वायरी नहीं की थी सरकार ने? 2017 के बाद तो बीजेपी की सरकार है। आप तो मेरे सवाल पे गनर कैसे दे दिया ये बताइए? अनुराग भदौरिया जी, हमें तो आज तक गनर नहीं मिला, मुझे तो सुरक्षा नहीं मिली। मैं तो कई बार बोला कि भाई, आपके माध्यम से भी कई बार बोला कि हम लोग प्रवक्ता हैं, 24 घंटा बाहर रहते हैं, तो हमारे पास इतने अनुराग भदौरिया जी, अगर आप एक रेस्पेक्टेड स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, कि अगर आप कल बीजेपी के पास जाते हो और बोलते हो देखो मैं डिबेट्स पे आती हूं, मैं समाजवादी पार्टी के हूं, क्या आपको एमएलए स्टिकर मिलेगा बीजेपी से? मेरी आप अभी बात नहीं समझे। ये रिश्ते उनके भारतीय जनता पार्टी के पुराने रिश्ते। अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि नेता भारतीय जनता पार्टी का है, अब भारतीय जनता पार्टी का नेता गुंडागर्दी कर रहा है, इसके ऊपर में तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की। जब सरकार ने कार्रवाई की, जब पूरा उत्तर प्रदेश उसके पीछे पड़ गया, उत्तर प्रदेश जग गया, हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की, तब उनके नेता अच्छा कुछ हुआ है ऐसा, कुछ हो गया, अच्छा चलो देखते हैं। तब इनके कमिश्नर तो जगा ही नहीं, वो तो कहो सांसद दौड़ा पहुंचा, और सांसद को पता है कि पुलिस कमिश्नर उसकी नहीं सुनता, इसलिए सीधा प्रमुख सचिव गृह को फोन मिला रहे और कह रहे हैं मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, Let's give a chance to the BJP to respond. त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, एक तो पहले अनुराग भदौरिया जी भाषाई मर्यादा ठीक रखा करें। सांसद दौड़ा पहुंचा नहीं, सांसद वहां पर पहुंचे और सांसद ही पहुंचे हैं। सांसद पहुंचे हैं, भाजपा के विधायक पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी का एक भी नेता कोई छुटभाई स्तर का नेता भी ओमेक सोसाइटी नहीं गया, इस बात का भरोसा नहीं दिला सका कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे या अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। अनुराग भदौरिया एक भी नेता का नाम नहीं बता सकते कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता वहां गया। सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के नेता हाथ पर हाथ धरे केवल ट्विटर की चिड़िया उड़ाते हैं या टीवी डिबेट से आकर के बहस करते हैं। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं, जो सवाल अक्षता आप पूछ रही हैं, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। अनुराग भदौरिया लगातार बोल करके चिल्ला करके डिबेट को डिस्टर्ब मत किया करो। अनुराग भदौरिया लगातार चिल्ला करके डिबेट को डिस्टर्ब मत किया करो। जब आप बोलते हो तो चुपचाप आपकी बकवास को सुना जाता है और आप लगातार बोल करके डिबेट को डाइवर्ट करने का प्रयास मत किया करो। ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया। बहस की एक मर्यादा होती है और बहस का एक तरीका होता है। बहस में सवाल किए जाते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अनुराग भदौरिया बिना आप जवाब दिए ये एक सेकंड नहीं बच सकते हो, ये लगातार बोल करके बच नहीं सकते हो।
होल्ड कर लीजिए 2 मिनट मैं आपको चांस देती हूँ। पहले त्रिपाठी जी को बात करने दीजिए। आपके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, विपक्ष एक कार्रवाई सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष कार्रवाई करेगा क्या? अनुराग भदौरिया जी, होल्ड ऑन नहीं, अनुराग भदौरिया लगातार कंटिन्यू बोलेंगे तो इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है, और अगर ये कंटिन्यू बोलेंगे तो इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। आपने इतने ये तरीका अनुराग भदौरिया का बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है। आप चैनल पर हमला नहीं बोल सकते हैं। एक सेकंड, त्रिपाठी जी एक सेकंड, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, विपक्ष कार्रवाई अनुराग करे। भदौरिया जी, अच्छा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं करेगा, विपक्ष कार्रवाई करे। हाँ, ये तो गलत एक बात सेकंड कर रहे हैं भाई। भदौरिया जी, एक सेकंड होल्ड कर अरे, एक लीजिए। सेकंड आपने आप इतने कहिएगा सवाल कि पूछा विपक्ष था। कार्रवाई करे। एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड, आपने इतने सवाल पूछे थे, एक चांस दे दीजिए बीजेपी को, रेस्पॉन्ड कर लीजिए, उसके बाद में एक चांस देती हूँ आपको। देखिए, मैंने त्रिपाठी आपको जी बोला बताइए। विपक्ष नहीं, एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड भदौरिया जी, त्रिपाठी जी को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके पास आ जाती हूँ। तो उनको बता दीजिए कि हम लोग विपक्ष में हैं, सत्ता में देखिए वो है। अक्षिता, एक आपने एक बहुत वाजिब सवाल ठीक है, पूछा त्रिपाठी जी, है। एक ही पॉइंट है वाजिब भदौरिया सवाल जी पूछा के है कि उत्तर प्रदेश एसपी विधानसभा सरकार में नहीं है, आप सरकार में हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, हम सरकार में हैं और विपक्ष का ये उत्तरदायित्व है कि सरकार की कोई खामी हो, कमी हो तो उसको उजागर करे। वो जनता को ये भरोसा दिलाए कि सरकार से वो प्रोटेक्शन दिला करके काम रखेगा, वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा। मैं पूछ रहा हूं कि विपक्ष के किस नेता ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद स्वयं वहां उमेश सोसाइटी गए, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आपकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जो अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए न केवल वहां सुरक्षा की व्यवस्था करने का काम किया है, बल्कि सुरक्षा में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर हमने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने का काम किया, अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का काम किया है। सरकार से जो अपेक्षा है, संगठन से जो अपेक्षा है, वो हमने पूरी की है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि सपा का कौन सा नेता वहां आवाज उठाने के लिए गया? पहली बात। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से विधायक के लिए क्रम संख्या 0505 ये जो 5 नंबर जारी किया गया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के एमएलसी और वर्तमान एमएलसी हालिया 2023 तक के लिए जारी किया गया पास है। ये कोई पुराना पास नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी बनने के बाद जारी किया गया पास है। और ये पास अगर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्रीकांत त्यागी को दिया गया तो क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? एक सेकंड, ठीक है, you made your point. Because this political bickering will continue, I want to bring in Mr. Vikram Singh on this because Mr. नहीं, एक सेकंड भदौरिया जी, I'll just bring in Mr. Vikram Singh. भदौरिया जी, 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड, ठीक है, 2 मतलब 10 सेकंड आपको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे विपक्ष ने आवाज उठाई, अगर हम नहीं चिल्लाते आके, हम का क्या लठ लेके पहुंचते? अरे हमने मीडिया के माध्यम से चिल्ला के बोला है कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अगर हम लोग पहुंच जाते तो कहते कि समाजवादी देखो राजनीति करने आ गए। हमने राजनीति नहीं की, न्याय दिलाया। अरे कौन सा नेता गया? नाम बता दो अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता साइकिल पंचर हो जाती है जाते जाते तक घटनास्थल तक? त्रिपाठी जी, भदौरिया जी, एक सेकंड, ठीक है, आप दोनों ने आपके पॉइंट्स प्रेजेंट कर लिया। लेट मी ब्रिंग इन अ थर्ड पैनलिस्ट आल्सो, मिस्टर विक्रम सिंह। Apologies sir, you can see how heated this political debate is, but I think the concern for every citizen today is who is this person? He's got BJP influence clearly, he's got SP influence clearly, he's not a political leader but just has their backing. And are there many more such Shrikant Tyagis who exist? Akshita, good evening, and good evening, esteemed sir. panelists. There's sumptuous takeaways from the interaction till now. First, let him cast the first stone who has not sinned before. And also the pot calling the kettle black. I'll stop at that. A word to the wise is enough. It is not the question of one Shrikant Tyagi. There are Shrikant Tyagis lurking like snakes in the grass. It is a different matter that this Shrikant Tyagi was exposed. There are others who are waiting in the hedges and in the shadows to be exposed by the people, by others. It is the job of the police to understand that the person who has 9 cases against him, not 1 or 2 but 9 cases, why was he not booked under the Gangsters Act? Why was he not externed under the Gunda Act? Very true. Why was he given government shadows at government costs? Why did he have firearms, weapons? And then the brazen constructions and encroachments did not come in a day. Like Rome, they were not built in a day. But yes, we were waiting for the bulldozers to come on his 12 shops in Bengal. I would like to know, why did the bulldozers stop and why did they not demolish those 12 shops in Bengal? Also, fair point, an exemplary action needs to be taken. Are you Very sure true. that you want to go after those 12 shops, or you thought discretion is the better part of valor? Since he is one of the flock, no point in pursuing it still further. A message has been given and those 12 shops, let them be the way they are? Yes. No.
It has No, to be this 10% case or clearly 0%. should set a precedent for anyone else, any other Shrikant Tyagi out there. Thank you, Mr. Vikram Singh, for joining us. I'd like to thank our two political panelists as well, Mr. Rakesh Tripathi as well as Anurag Bhadoria, for joining us on this broadcast. People's power has prevailed in this particular case, but it's a question that concerns all of us. How many more such incidents, how many more such influential political, functionaries are around us? There are many more such Shrikant Tyagis, and hopefully this sets an example to all of them not to mess with the law, not to mess with the Aam Aadmi. Thanks very much for tuning in. Good night.